Yes, friends, we are live. Har Har Mahadev. Om Shri Ganpate Namah. Jai Mahakal. Jai Jai Shri Radhe. Welcome to the stream. We will talk about Balochistan and the crisis in Pakistan from a strategic perspective, from a tactical perspective, from a civilizational perspective, and from a dharmic perspective. So, if you have something to share or you would like to join the discussion, the link has been provided. You are free to join at any given point of time. But my request is that only genuine dharmic people should join. I don't want Sarkari Hindus, ration card holders of a fake political party or Hindu apologists to join. Of course, other non-Hindus also will be entertained if they stick to the decorum of the forum. So now friends, what has happened is in Balochistan, which is now a part of Pakistan. Pakistan, you know, was formed after the partition of Bharat, and Balochistan was a free country. British had carved out Balochistan free from the map of Bharat. So the idea was that they wanted to slowly give Islamic momentum, because Islam and Christianity go hand in hand. They are like brothers up in arms, you know. So in Hindi we say galbaiyan leke chalne wale. Even though they hate each other, but still they share the same value systems. Why? Because they both are from the Middle East, and historically they have been tied together through their books, through their prophecy, prophets, and Abraham, which they both consider as their father. So, so when the British, who had captured the entire Bharat Khand by illegal, legal, immoral coercion and everything, they soon realized that Bharat is a Hindu civilization, and Hindus have thousands and thousands, you can even call it as millennial levels of history. They have vast knowledge, they have a vast ecosystem, but the Mughals, the Islamists, have destroyed many things. And we means the British, the Christians, had already looted us quite heavily. In fact, they looted the Islamist, the gang, or you can call the uh, Muslims who were living, who were, the ancestors of the Mughals. They looted them also. And they created racial, ethnic tensions. They divided the Hindu society also. And they thought, we should keep these Muslims happy, because they are not so educated, they don't have a civilization, they don't have a structure.
where they can rise again and reclaim their position in the world. So the target was always the Hindu civilization. So they carved out Afghanistan, and after Afghanistan, the idea was that Balochistan will also be a Muslim nation. And then when they were about to leave, or they planned that we should have our own proxies. We have already looted, and now we will introduce these fake democracies systems in the world, and we will implement US dollar. And again, this is like a lobby, so it was very well pre-planned. And the target was always the Hindus, because we don't have a universal structure, we don't have a network system, while the Muslims and the Christians have a universal system, political system, I mean to say. So we were confined to our own region, and what they did was they planted their proxies and sought to divide Hindus. Like they created fake Hindu religious organizations like Arya Samaj and all those things. So they started fooling Hindus. And it was deliberately propagated in the northern plains. In the south, they said you are Dravidians and the Aryans have invaded you, and these Brahmins are the Aryans. You should kill them. You know, like they did it in America, the blacks and the whites. So this is how they plan plan the game. And the problem was many people fell into the trap because the entire narrative was controlled by them. Media was controlled, the academia institutions, and any bright student, what they used to do is they used to coerce them, give them good scholarships, good money, good jobs. So the Hindus also started, falling, and any any normal human being will fall for money and luxuries and all those things. So that is not a big deal. So anyway, coming to Balochistan, so what happened was Balochistan was a free country and it was ruled by a monarchy, the Khan of Kalat. Actually, that state was never called Balochistan; it was called Kalat. So the Khan of Kalat, and it was a very poor land. So the British had no interest in that, and by that time, in those days, like in 1940s, 30s, 1920s, they didn't knew how to extract minerals from this Kalat. So British had some fair idea that but they never knew about gas and petrol and all those things. So they neglected it. So technically, this Balochistan, the state of Kalat, was a very poor country. But if you go by civilization world, this is called a Mehrangarh civilization. So Major Gaurav has talked about it, and there are some videos also you will find. It's a very old civilization, and it was very closely related with the Indus Valley, the Harappa, Mohenjo-daro civilization. So Saraswati River and all those things, when they dried up, this I'm talking somewhere around 3,000 years back, when the Saraswati River dried up. So this all civilization got battered. So lot of evidence now historians are trying to do, but the Indology and the archaeology and everything is controlled by the Western world. So there is heavy manipulations, heavy propaganda, and everything is now controlled by the Jesuits and the Zionists and everything, the Illuminati. So, uh, so as soon as Pakistan was formed, so Jinnah, what he did was by coercion, he annexed. Uh, he annexed the land, state of Kalat. He just sent his soldiers and captured, and the Khan of Kalat was also arrested, and they implemented their laws. But Gwadar and all those areas was controlled by India.
Indian administered, because the British had slowly started to give rights to Indians to manage, because it's a big country and all those things. So Oman and everything also was controlled by India. I'm talking of those era because petrol was not discovered. So the British had no much interest. So they felt, okay, let the Indians manage. They know how to manage these tribal people and everything, and they have their own this thing. But since they were Islamic, so they were Arabs were in always respected the Hindu civilization, because they knew, Arabs knew that everything. i- the Hindus have been our traditional partners. They have taught them maths, uh, cosmology, astronomy, Ayurveda, and all those healing drugs. So, so Arabs respected the Hindu civilization, and uh, so Oman and all those. So they were not interested. Oman told also the India that you take the Gwadar port on lease, and but Nehru and Gandhi, all they were all proxies. So they said, no, no, we are not interested. We don't want to. This was deliberate because the British were controlling them from behind and pushing that. So Nehru and Gandhi, all they wanted that, oh, okay, this should be controlled by Muslims. So they knew the agenda, and they wanted to see to it that Hindus are suppressed. Hindus do not get any rights. So partition after partition also, if you see very closely, if you see the constitution of India, actually the word is not India, it should have been Bharat, but kya kare, and it's always called India, India, and they say it is Bharat Sarkar also. Bharat is also there, India is also. How can a country have two names? You should use the original word, right? Why you want to use the word India? Anyway, forget it. So now Balochistan was annexed, and then this Jinnah, and he took money from the Khan. He was fighting for their rights against the British and all those. But then he backstabbed the Khan of Kalat, and he annexed, and Pakistan occupied, and the Punjabi Sunni military took over. And from that day till today, they were literally butchering the Balochis. Now, Balochistan, if you see, in the 17th century, these Balochis who had converted to Islam, the civilization got disturbed, but at least they had some respect, because when the Hinglaj Mata, one Shakti Peeth is there in that area in the Kalat, so at least they have not destroyed that Shakti Peeth, and they allowed at least Hindus to, they were not so um, radicalized like Turks and the Mughals and all this, because Mughals also butchered them, Uzbeki, that Baba type. So, but what had happened was a Maratha Peshwa, I think so, it was Peshwa Bajirao II, if I'm not wrong. So they had lost the battle in. No, they did not lost the battle. They were raiding Kabul. They had gone up to Kabul, Kandahar, and in between this Balochistan area was uh, was in the middle. So what had happened, the Maratha army was struggling for food and water and those. So these Balochi Muslims, they backstabbed the Peshwas, and got them arrested with the Pathan army, the Afghans. So they colluded with the Afghans and they saw to it. So many of them were taken as prisoners, and uh, many of these were, they stayed back in Balochistan. They became the slaves, the Marathas. Many of them became slaves and later got assimilated. So if you see Balochistan, many people still use Marathi words. So you will find a lot of Marathi things still there, like mother, they say I.
I'm not an expert in this, but I've heard it. I heard this talk from someone. I don't remember his or her name, but that talk was very interesting, and I read it also. Uh, if I had remembered, I would have shared the name. So, so Hindus should realize that Muslims you can't trust, even though he has converted from Hinduism. He will never respect Hindu sentiments. You have to understand this thing. If you don't understand all those things, then you're a fool if you don't learn from history. And the problem with Hindus is they're too arrogant, they're too selfish, they're too egoistic. They don't want to learn. They only learn when there is a crisis, and they want to, do that hearsay, and then, make a bhel puri out of it. They will present as if they have the knowledge to others. So they want instant recognition. They have a low self confidence index, and all those things is there. So they don't work in a group. So you will see Hindus in isolation work very well, but in a group they are as a group, as a Hindu group, they will never succeed. They'll start fighting among themselves. So Balochistan, I have no. So from that perspective, from a dharmic perspective, I have no sympathy for the Balochis. So if the Pakistanis or Sunni Muslims are butchering them or killing them, I have no sympathy for them, because this is what their cult is all about. It's all about sex, violence, and cheating. So they will do all those things. So if people have followed the Mughal history, the Pathan history, Afghans history, the Turk history, the Mongol history, so Muslims do that. Mughals, you see, right, starting from Babur to this Aurangzeb, everybody used to, father and son, they used to kill each other for the throne. They will kill their brothers. It's not only Aurangzeb was cruel, Akbar was highly cruel. So all these things are there, but we are never taught. We don't take interest, and this country is controlled by the Islamic state. I always call it India is not Hindu. This thing, it is a ISIS democracy. India is a ISIS democracy. So in 47, they carved out three Islamic things. One is that West Pakistan, one is that East Pakistan, which is now Bangladesh. So these two became pure Islamic countries. And India, since it was very big, so what they did was they said, okay, now Hindus, we can't kill them, every one of them. We have already done a big genocide in Bengal and everything, and we have looted Hindus, and we have divided them. They'll fight among themselves. So what they did was they introduced this constitution, secularism, socialism, all these communist ideologies, and Hindu code bill, हिंदुओं का रिलीजियस सब डिसीजन हम करेंगे, और ये सब करके, एंड दे फूल्ड हिंदूज. So Chindus fell into the trap, and they still, and today's till today, they don't realize that they never got independence, and they are second class, third class. They are third grade citizens. Okay, Hindus are third grade citizens in this ISIS democracy. So whenever I say that, they got offended, they felt cheated, they feel, "Arey, this is a radical thought," but they don't try to connect the dots. They don't want to listen to a strategic expert like me who understands, who's trying to unite. So backstabbing is a forte. Anyway, so now coming back to present Balochistan. Now Balochis are fighting back. You want to speak me? Okay, let me speak in Hindi for a while. तो थोड़ा बहुत हिंदी के भी दर्शक समझ पाएंगे. तो अब क्या हो रहा है कि बलोची जो हैं वो लड़ रहे हैं बलोचिस्तान में. अब वो लोग
पाकिस्तान जो सुन्नी मुसलमान है उनसे परेशान है। पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने सबसे बड़ी गलती क्या की। अब हम लोग स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, मैं थोड़ा पहले धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा था, अब आप बलूचिस्तान में एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सामरिक दृष्टि से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो पाकिस्तान ने क्या किया, वो अमेरिका की गोद में बैठा था, अमेरिका जो बोलता था वो करता था, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि ये तो गोरे ही चलाते हैं, पूरी दुनिया जो है वो गोरे चलाते हैं। तो रिलीजन कार्ड खेलना बहुत आसान है, और पाकिस्तान ने क्या किया, इस्लाम के नाम पे पाकिस्तानियों को, वहाँ के जो उसको एक, अगर थोड़ी देर के लिए आप देश मान लो पाकिस्तान को, तो नागरिकों को ही दबाया, और बहुत उनमें पॉइजन भरा कि हम तो मुसलमान हैं, हम पाक हैं, हम ये हैं वो हैं, और नफरत भर दी सबके विरुद्ध। ये सब यहूदी कीड़े हैं, हिंदू जो हैं वो राक्षस हैं, और ये इस तरह से। तो ये करते 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 अमेरिका ने, सॉरी, ये पाकिस्तानियों ने पूरा जहर से भर गए लोग। अब पाकिस्तानी जो हैं वो काम वाम तो कुछ करते नहीं, पंजाबी वडेरे जो हैं, ये जमींदार टाइप है, ये पहले जट थे, तो इसमें से काफ़ी लोग कन्वर्टेड हैं। और तो इन लोगों ने क्या किया कि भाई, बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी सोचना बुद्धि है नहीं। और फिर जब से ये कल्ट जो आया, अरेबियन कल्ट, तो ये लोग उसमें फंस के रह गए, क्योंकि इनको इतना ब्रेन वॉश किया गया कि ये पूरी तरह फंस गए। और फिर ये जो यूपी बिहार के जो गए, जिन्होंने भारत से जो चिढ़ते थे मुगल, वो मुहाजिर बन के जो गए, उन्होंने और इनको वो किया। तो उससे क्या हो गया कि ये प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। तो इन्होंने अमेरिका से दोस्ती की, अमेरिका इनको बहुत पैसे देता था, अमेरिका चाहता था कि भाई भारत के टुकड़े हो जाएं, जिससे उसको आगे जाके कोई चैलेंज न कर सके। ठीक है। और उनको पता है कि हिंदू सिविलाइजेशन को ख़त्म किए बिना हम लोग मॉडर्निटी पूरी वर्ल्ड में नहीं ला पाएंगे, और हिंदुओं के पास बहुत सारी ऐसी नॉलेज है जो आज भी छिपी हुई है, वो सब जानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है हिंदू नहीं जानते। अब उस उसको भी बहुत चुराया गया है, जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत, इसमें भी क्या बहुत गहराई है। इन सब चीज़ों पे बारीकी से अगर कोई देखेंगे तो उसको समझ में आएगा कि सिर्फ एक हीरा होता है ना, तो वो बहुत बारीक, मतलब जो उसकी परख कर सकता है, जिसको पता है कि अरे बाप रे, इस खदान में इतना खोद के वो हीरा यहाँ मिलेगा, और जब वो देखता है, उसको समझ है, तो वो बहुत एक्सपर्ट लोगों की चीज़ है, हीरे में डील करना हर एक की नहीं है। तो ऐसा ही है। तो जिन लोग को नॉलेज और ये सब चीज़ें समझती हैं, स्पिरिचुअलिटी और सब, अब वेस्टर्न वर्ल्ड क्या है कि वो सोचता है ये चमत्कार, ये जो पावर्स हैं, इससे हम फ़ायदा उठा लें, जैसे योग है, ध्यान है, साधना है, और इसको हम अपने मनुष्यों को कंट्रोल करने के लिए करें, जैसे राक्षस होते हैं, असुर होते हैं। मैं आपको वैसे बता, चलो वो यार वो लंबा टॉपिक हो जाएगा, जो बलूचिस्तान पे बात करना है। तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ। तो हाँ, कैरिश मोरर, ठीक है, वुम टुडे, पता नहीं कौन है ये भाई। ओके, कैरिश मोरर। सो बलूचिस्तान की बात करा तो अमेरिका से इन्होंने, जब इनको धीरे धीरे ये लगा, अमेरिका को लगा कि अब हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, और जो भारत है उस वो धीरे धीरे ऊपर आने लगा, उसने इतनी मार खाने के बाद भी अपने आप को संभाला और थोड़ी तरक्की शुरू की, इसने मॉडर्न साइंस को अपनाया, और वो जाके थोड़ा सा इनके कैंप में बैठा, अमेरिका को उसने एक्सेप्ट किया, हाँ वो वर्ल्ड पावर है, यूएस डॉलर को एक्सेप्ट किया। और तो उन्होंने फिर क्या किया कि चाइना को तो क्रॉप अप किया ही था,
अब चाइना ने सोचा कि भाई मैं पाकिस्तान को यूज करता हूँ, और पाकिस्तान का उपयोग करके मैं इस पूरी, या कैरिश मोयर, इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन, the stream yard link has been provided. If you want to talk about Balochistan and Pakistan and the crisis, you're welcome. I can speak and understand in Punjabi, Hindi, English. So these, mm, Marathi, Gujarati. I mean, I can understand some of the Indian languages and English. So if you speak, I assume you are not an Indian, so you can join. So हाँ, तो क्या हुआ कि, क्या बोल रहा था मैं, तो पाकिस्तान ने क्या किया, वो धीरे धीरे चाइना की गोद में जाने लगा, और अमेरिका को उसने धोखा दिया, डबल गेम खेला, उनसे पैसे लिए और उनके हिसाब से चला नहीं। अब पाकिस्तान जो है आज भी अमेरिका का ही पाला हुआ कुत्ता है। मैं बहुत क्रूड लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो अब वो क्या है, वो कुत्ते का जो मालिक है वो कुत्ते से सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशन रखता है कि ये मेरे प्रति लॉयल होगा। अगर कुत्ता अगर अपने मालिक को काटने लग जाए या उसकी नहीं सुनने लगे तो वो कभी भी उसको, कुत्ते को अपने घर में नहीं रखना चाहेगा, या कुत्ते को वो रोटी नहीं डालेगा, हड्डी नहीं डालेगा। तो पाकिस्तान को धीरे धीरे अमेरिका ने हटा लिया, और भारत जो था वो तेजी से उभर रहा था। अब भारतीय जो हैं वो पूरा अमेरिका में छा गए हैं, और वो अमेरिका को आता है कि कैसे हिंदुस्तानियों की, और खासकर जो हिंदू माइंड है उसको कैसे वहाँ यूज़ करना। वो लोग उनको अच्छे पोजीशंस पे अच्छा सब फैसिलिटीज़ देख के उनसे वो काम लेते हैं, और उनको पता है कि ये हमारे लिए कभी फ्यूचर थ्रेट नहीं होंगे, क्योंकि हिंदूज जो हैं वो यूनाइट नहीं हो सकते, वो आइसोलेशन में काम करते हैं। और उनका कोई वर्ल्ड व्यू नहीं है कि हमको दूसरे देश में जाके कब्जा करना है या अपना आइडियोलॉजी थोपना है, क्योंकि हिंदू में कन्वर्जन नहीं है, वो सब चीज़ें नहीं है। हिंदू जो है वो सर्वे भवंतु सुखिना में बिलीव करते हैं, मतलब सोचता है कि द एंटायर यूनिवर्स शुड बी हैप्पी, एवरी ह्यूमन शुड बी हैप्पी। तो ये प्रॉब्लम है। तो हाँ, अरे यार मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता हूँ, हाँ, तो सॉरी उसके लिए। तो पाकिस्तान जब उसकी गोद में बैठ गया तो अमेरिका ने उसको हाथ खींचने शुरू किए। भारत ने उससे हथियार खरीदना शुरू किया अमेरिका से। वो रशिया से थोड़ा दूर हुआ। अब रशिया जो है वो चाहता था कि इंडिया हमेशा मेरी पे डिपेंडेंट रहे, वो कभी भी हथियार न बनाए। इसीलिए उन लोगों ने कभी भी हिंदुस्तान को उस टाइप के हथियार नहीं दिए। रशिया ने बहुत सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के वेपन्स इंडिया को दिए, भारत को दिए। तो भारत की पोजीशन खराब रही, और पाकिस्तान के पास बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन्स रहे अमेरिका के। F-16 भी उन्होंने उनको दिए, सब दिए। अब वो धीरे हटा लिए उन्होंने। अब वो उनको नहीं अपग्रेड कर रहे हैं, वो उनको नहीं ये कर रहे हैं, तो सब चक्कर है। एनीवे, तो अ, तो बलूचिस्तान में अब जो प्रॉब्लम, मतलब बलूचिस्तान को अब चाइना ने जब ये सीपीईसी चालू किया, वो इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ने, बेसिकली चाइना ने क्या किया, पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी बना लिया है। उसको लोन दे दे के, उसको चढ़ा चढ़ा के, उसको बहुत सारे हथियार दिए हैं। चाइनीज़ चाइनीज़ ने किया, रशियंस के बहुत हथियार कॉपी किए हैं। रशिया को क्या पैसे की ज़रूरत है? रशिया कोई बहुत, तो आप लोग जैसा सोचते हो वैसा कुछ है नहीं रशिया के पास। सिर्फ हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी, उनके पास कोई इतना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इतना फूड, ये सब चीज़ें नहीं है। इतना सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स, आईटी, वो सब नहीं है। वो लोग, नो डाउट दे आर वेरी ब्रेनी एंड दे आर वेरी गुड पीपल, मगर उनके पास उस तरह के एक्सपोर्ट्स, उनका जियोग्राफिकल अगर आप देखेंगे
तो वो बहुत पुअर स्टेट है, वो पुअर पुअर नहीं, उसके कुछ चैलेंजेस है एनवायरनमेंट के हिसाब से। वहाँ स्नो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इंडिया जैसा नहीं है। तो इंडिया के पास बहुत एडवांटेज है, हम लोग इक्वेटर के पास हैं, हमारे यहाँ स्नो का इतना प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास एग्रीकल्चर है, हमारे पास बहुत सारे टेक्नोलॉजीज है, हमारे पास ऐसे बीज हैं, हमारे पास खाने की वैरायटीज हैं, मतलब बहुत कुछ है हमारे पास अच्छा इंग्लिश स्पीकिंग क्राउड है अभी तो। वहाँ सब कंप्यूटर्स हैं और सब चीज़ें, तो हम लोगों ने क्या किया, उसको एक्सपोर्ट करना शुरू किया है और काफ़ी कुछ कर रहे हैं। एनीवे, तो अ, तो रशिया को लगा कि अरे अब क्या होगा, तो रशिया जो है वो चाइना को पूरा बैकिंग दे रहा था। उसको लगा इंडिया मुझे धोखा दे रहा है, तो इंडिया ने पहले ही तय कर लिया था, लेकिन प्रेशर बहुत था। तो आपको पता ही है कि इंडियन पॉलिटिशियंस और ये सब तो बिके हुए रहते हैं। तो रशिया ने बहुत अपने, रशिया इज़ वेरी गुड इन स्पाइंग एंड ऑल दोस थिंग्स। तो उसने बहुत इन्वेस्ट किया हुआ था इंडियन दिस थिंग मीडिया में, सब में कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा बहुत था। लेकिन धीरे धीरे अब क्या हो गया कि लोग भी उब गए कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा से, जब से कैपिटलिस्ट एटीट्यूड आया। तो कांग्रेस ने क्या किया कि कम्युनिस्टों को ख़त्म करने के लिए उन्होंने रिफॉर्म्स लाए 91 में, और वो धीरे धीरे कैपिटलिज्म की ओर बढ़े, सोशलिज्म ख़त्म कर दिया। तो 91 तक आप देख लीजिए हमारा देश बहुत गरीब रहा, सोना तक गिरवी रखना पड़ा। तो नरसिम्हा राव ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया। और तो अब पाकिस्तान की हालत इसलिए ख़राब होती चली गई, भारत ने उसको फिर दबाव डाला, और एफएटीएफ में उसको अमेरिका ने पूरा पूरा कंट्रोल अमेरिका कर रहा है। पाकिस्तान को दबाने के लिए पूरा अमेरिका कर रहा है, इंडिया तो अब बेकार में खुश हो रहा है। लेकिन ये पूरा एक ग्लोबल हेजेमनी है जो अमेरिका के फेवर में। तो अमेरिका ने डिसाइड, मतलब निर्णय ले लिया है कि पाकिस्तान को ख़त्म करना है। तो अब पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं, 2-3 साल में तो हो जाएगा। अब ये अटैक करने के पहले अमेरिका, मुझे भी लग रहा था कि वो अफगानिस्तान से भाग गया है, तालिबान को उसने बहुत सारे हथियार दे दिए हैं, तो इसका पीछे तालिबान को वो पावरफुल बनाना चाहता है, ये दिखाना चाहता है कि अफगानिस्तान में आगे फ्यूचर में कुछ नहीं होगा। अब रशिया तो कभी जाएगा नहीं अफगानिस्तान में, और मतलब वो रीजन में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और तालिबान फिर इंडिया यानी भारत पे करेगा, क्योंकि हम लोग हिंदू सिविलाइजेशन को भी ख़त्म करना है, हिंदुओं को मारना है। तो मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन उससे पहले मेरे को, अब ये चीज़ मैंने नहीं सोची थी कि हाँ ये क्यों ऐसा करेगा, लेकिन अब समझ में आया कि वो जो हथियार वो छोड़ के गया, वो सारे हथियार बलोचियों को दिए गए, इनको ट्रेनिंग दी गई तालिबान यानी अफगानिस्तान में। और ये अमेरिका काफ़ी साल से कर रहा था, 2-3 साल से कर रहा था। इंडियन जो इंटेलिजेंस है, मतलब भारत की भी मदद ली गई कि भारत भी काफ़ी अफगानिस्तान में इंटेलिजेंस में अच्छा काम कर रहा है। और बहुत सारा अफगानियों को खाना वाना, एड बिल्डिंग बना के देना उनको का, हॉस्पिटल, और उनका पार्लियामेंट वार्लियामेंट, उनको बुक्स वुक्स, ये सब भारत दे रहा है। भारत का एक स्ट्रैटेजी है कि सॉफ्ट ये करना है, वो उस वेपन्स और वो सब में नहीं जाना है। और जो उनके ट्राइबल फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, तो ये मुसलमानों में ये जो ट्राइबलिज्म है, उसको वो भारत एक्सप्लॉइट करता है कि भाई चलो ये ट्राइबल लॉर्ड को खुश किया, उसको खुश किया, इसको खुश किया, ऐसा। तो भारत में उतना मेच्योरिटी आ गया, और अमेरिका ने भी वही किया। तो फिर अब बलूचियों को इन्होंने हथियार दिए, अमेरिका ने, और इनको खूब ट्रेनिंग दी, इनको सिखाया कैसे लड़ना है, पूरी इंटेलिजेंस दी, और इंटेलिजेंस का यूज़ करके बलोची जो है अब वो इनको मार रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान के पास अब पैसा है नहीं। अमेरिका को उन्होंने धमकी भी दी। अमेरिका ने बोला तू मेरे को क्या धमकी दे रहा है, तू मेरा तो पाला हुआ कुत्ता है, तू क्या मेरा घर कब्जा करेगा, कुत्ते को घर कब्जा करने की वो है। तो वो चाइना के पास गया। चाइना तो कुत्ते का मांस भी खा जाएगा, वो कुत्ते को खाना खिला रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये करते हैं ना हरे टिड्डे, कि भाई हम बकरे को हरी घास खिलाएंगे, पत्ते खिलाएंगे, फिर उसको
कुर्बानी करेंगे, उसको काट डालेंगे और उसका मांस खाएंगे। तो ये प्रॉब्लम है। तो चाइनीज तो मतलब कम्युनिस्ट हैं, तो उन्होंने बोला ये सब करने का जरूरत ही नहीं है, हम तो इसको कुत्ते को देंगे मीट और फिर इसको ही मांस खा जाएंगे, इसको ही मार डालेंगे जरूरत पड़ी तो, जब तक ये हमारे साथ है। तो चाइनीज तो क्या इमोशनल लेस है और उनको पता है, क्योंकि जो हान चाइनीज है वो इस्लाम से बहुत मार खा चुके हैं और लोग के पास पूरी हिस्ट्री है। और इसीलिए आप देखिए कि चाइना जितना भी एक्सपेंशन कर रहा है, जो भी उसके मुसलमान नागरिक हैं वो उनको बराबर कंट्रोल करता है टोटल। और वो सही भी है। मैं आई मीन आई गिव 100% मार्क्स टू द चाइनीज कम्युनिस्ट, बिकॉज वो कितने भी वर्ल्ड वाइड कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट साथ में हो, लेकिन वो चाइना में जो कम्युनिस्ट हैं उन्होंने इनको कभी भी कोई छूट नहीं दी है इनको। दे हैव नॉट इवन गिवन देम 0.1% चांस, राइट? सो दैट इज द राइट वे टू गो। इंडिया तो नट केस है, इंडिया भारत की तो बात ही मत करो यहाँ तो। अब देख लेना अब हिंदुओं का क्या होने वाला है। मैं अब लास्ट में कुछ बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो पाकिस्तान की हालत ख़राब होती जा रही है। बलूचिस्तान के जो लिबरेशन आर्मी है वो हमला कर रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बलूचिस्तान आर्मी नहीं है लिबरेशन आर्मी, इसमें और लोग भी इन्वॉल्व है मेरे हिसाब से। आईएसआईएस, खुरासान नेटवर्क और तालिबान, टीटीपी, ये सब भी इसमें हमला कर रहे हैं। क्योंकि ये जो सुसाइड बॉम्बिंग है बलोचियों को नहीं आता है, इतना सोफिस्टिकेटेड वेपनरी चलाना, ट्रेनिंग देना। ट्रेनिंग ठीक है, लेकिन वो घुसना उनको ये सब मुझे नहीं लगता बलोची कर पाएंगे, क्योंकि बलोची जो है वो कभी भी लड़ाका नहीं रहे। उनको अगर आप उनका 10,000 साल का इतिहास देखेंगे तो वो लोग उतना फियर्स नहीं, क्योंकि वो गरीबी रही है। बलूचिस्तान जो कलात बोल लीजिए, सॉरी मेरे को कलात बोलना चाहिए। तो कलात जो है वो गरीबी वाला देश रहा है। और वहाँ पे आप वहाँ की जनसंख्या पे देखेंगे बहुत ज़्यादा नहीं है, और उनके पास एरिया बहुत है, बहुत बड़ा एरिया है। और काफ़ी कुछ वो डेजर्ट जैसा ही है, लेकिन डेजर्ट तो नहीं है, कम्प्लीटली रेती नहीं है, पहाड़ ही पहाड़ है वहाँ भी। अफगानिस्तान जैसे बड़े बड़े और वैसे पहाड़ नहीं है, छोटे छोटे हैं। तो उसमें नेचुरल रिजर्व्स और सब बहुत अब तो मिल गया है, सबको पता चल गया है। तो हर कोई उसमें से चाहता है कि मैं उसको खा जाऊं। वो नेचुरल रिसोर्सेज आज आपको पता है, आजकल सब लड़ाई पेट्रोल और कॉपर सिल्वर गोल्ड के लिए होती है, तो वहाँ बहुत सारे गोल्ड रिजर्व है। तो ये सारी लड़ाई है। चाइना को लग रहा है कि वो गोल्ड मैं खा जाऊं, अमेरिका को लगता है कि वो गोल्ड मैं खा जाऊं। भारत तो को खा नहीं सकता। भारत का प्रॉब्लम है कि वो प्रेडेटर नहीं है, तो भारत की तो समस्या है कि वो सिर्फ मदद करेगा, वो दलाली करेगा और वो किसी न किसी पावरफुल के साथ जाके बैठेगा और वो सोचेगा चलो भाई इसका भी भला हो। वो किसी को लूटने की मंशा नहीं रखता। ये भारत संस्कृति नहीं है, भारतीय हिंदू संस्कृति तो नहीं है। तो भारत क्या कर रहा है कि भाई वो चाहता है कि भाई ये छुटकारा हो जाए बेचारे। इनको बहुत बुरी तरह मारा जाता है, पाकिस्तानी जो पंजाब सुन्नी मुस्लिम है पंजाबी, वो इनको इन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है। बोलते हुए शर्म आती है, क्या करे, लेकिन बोलना पड़ता है। और हम बच्चों को उठा ले जाते हैं। बलोची जो पुरुष हैं उनको उठा ले जाते हैं और वो गायब हो जाते हैं, ऐसे हजारों वहाँ के लोग गायब हो गए हैं। और क्या ह्यूमन राइट्स वाइट्स कुछ नहीं होता, ये यूएन सब बोगस है, सब अमेरिका का कंट्रोल है। तो अब जब अमेरिका आ गया है पिक्चर में, तो अब सब ह्यूमन राइट्स भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। बलोचियों को हथियार भी मिलेंगे, पैसा भी मिलेगा, सब होगा। और पाकिस्तान की खूब पिटाई होगी, सब कुछ होगा। तो ये सब कर रहे हैं। सो एनीवे, सो दिस इज द स्टोरी। और आई फील द आईएसआईएस हैज़ अ बिगर गेम प्लान। अब मैं एंड में बस ये बोलूँगा कि इसमें भारत को खुश होने की ज़रूरत नहीं है। और भारत के जो ये सरकारी हिंदू हैं और ये जो चमचा हैं, ये गुज्जू के, ये सब जो गैंग है, ये
भड़वा जिहाद पार्टी और ये रसूल सेक्संग और ये सब, जो आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये सब जो बेकार लोग हैं, ये गैंग, ये खुश हो रहा है, हाँ ये अच्छा हो रहा है, इसमें भारत की जीत है, ये तो हमारा डोभाल साहब जो हैं वो चाणक्य हैं, हमारा जो मोदी जी हैं वो तो भगवान का अवतार हैं, ये सब करवा रहे हैं, ये वो फलाना ढिमका, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लग रहा है कि आगे जाके ये सारा अब अटैक्स भारत में भी होंगे, क्योंकि जो इस्लामिक नेटवर्क है, जो जिहादी नेटवर्क भारत के अंदर है, वो बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। और भारत के अंदर 500 पाकिस्तान तो बन चुके हैं, 500। और बहुत सारे पाकिस्तानियों को भारत नागरिकता देने जा रहा है, आप समझ रहे हैं। इलीगली तो बहुत से पाकिस्तानी रह रहे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। और बहुत सारे बांग्लादेशी रह रहे हैं, भारत की इतनी भी हिम्मत नहीं है। रोहिंग्या रह रहे हैं जो म्यांमार से, जो नरभक्षी हैं, जिन्होंने बुद्ध बौद्धों का मांस खाया, दे आर कैनिबल्स द रोहिंग्यास, दे इवन एट द बुद्धिस्ट ऑफ म्यांमार। बुद्धिस्ट तो बेचारे इतने शांत लोग, इतने अच्छे, तो उनको फिर लड़ने मरने पे आना पड़ा, और फिर वो लोग ने इनको भगाया, तो ये सब भाग के भारत आ गए। भारत उनको निकाल नहीं पा रहा, क्योंकि यहाँ लॉबी बहुत स्ट्रांग है इस्लामिस्ट और कम्युनिस्टों की। भारत से चिढ़ने वाले भारतीय, भारत का पासपोर्ट होल्डर होने के बावजूद वो भारत से पे थूकते हैं। आप देख ही रहे हैं, थूक जिहाद चल रहा है सब जगह। और वो खुलेआम बोलते हैं, खुलेआम सब उनके नेटवर्क्स हैं, लेकिन भारत सरकार में दम नहीं है कुछ करने का, क्योंकि ये सब बिके हुआ है। अब ये कड़वी बातें हैं, कोई सुनना नहीं चाहता, तो ठीक है, मैं भी फिर बार बार बोलना भी नहीं चाहता, क्या करूं। और आज कोई जुड़ा भी नहीं, तो ठीक है, मैं भी मोनोलॉग नहीं करना चाहता था, सोचा चलो किसी से बात करेंगे, लेकिन भाई को आया नहीं, तो ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही। सो लेट्स मीट सम अदर डे, and any of you who listens to my dialogue and wants to join for a discussion, you let me know in the comments section. I would gladly invite you to talk on these subjects, and I can also learn from some experts and get benefit out of it. I don't want fakesters and egoists and apologists. All those type of people, please stay away. वो पहले मैं देख चुका हूँ, वो बोगस लोग आते थे वो सारे। एनीवे फ्रेंड्स, बाय फॉर टुडे, हैव अ लवली इवनिंग। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे।